اور اس متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نصیر کا دھرنا مظاہرین کے لیے پیغام سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں تمام ملازمین یقین رکھیں کسی کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے صرف عہدے کا نام کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کیا ہے۔ حکومت نجکاری نہیں کرنے جا رہی، سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں۔ آؤٹ سورسنگ سے کسی کی نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحت پنجاب صرف مریض نواز کا نہیں سب کا وین ہونا چاہیے۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ ٹیکنیکلی یہ سروس پرووائڈر کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک قسم کی آؤٹ سورسنگ ہے جس میں کہاں سے لوگ آنے ہیں، یہی ہیلتھ ورکرز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے۔ ایشو اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی دکان نہیں چل پا رہی تھی، جن کی سیاست نہیں چل پا رہی تھی، کوئی نوکریوں سے نکل کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو پرانے دھرنے یاد آ رہے تھے، کوئی جو تھا اپنی وہ سیاست چمکانا چاہتا تھا، کوئی اپنی پی جی شپ بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی ٹرانسفر واپس چاہتا ہے۔ تو ان سب کو ایک ایسا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہمارے بیچارے معصوم سے جو ہیلتھ کے اسٹاف کے لوگ ہیں، جو بیچارے ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان تمام کے اندر یہ ایک میسج پھیلایا گیا کہ شاید ان کی جو ہے نوکری کو کوئی خطرہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی آج کے دور میں جہاں مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے تو ہمارے وہ بیچارے ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور آج ان میں سے کچھ ساتھی جو ہیں وہ مال روڈ پہ بیٹھے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خدا را اپنی نوکریوں پہ واپس جائیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام جو ہیں ان کو بیسٹ ہیلتھ فیسلٹی ملے، اس سسٹم کے اندر بہتری آئے، اس سسٹم کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو دوائی چوری کرتے ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور ایسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے۔ تو جو ہمارا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام ہے، جو 20,000 کے قریب ہم لوگ اس کے اندر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو پورا ایک چانس دے رہے ہیں کہ وہ 20,000 لوگ وہاں پر آئیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شامل ہوں، اور وہ تمام ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہاں پر اپنی نوکریاں کریں اور اس ہیلتھ سسٹم کے اندر اپنا انپٹ ڈالیں۔ حکومت پنجاب نے 5 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ وسیم حامد کی خدمات پنجاب فوڈ اتھارٹی سے واپس، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ محمد نبیل ریاض ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ اور محمد عثمان علی ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ پنجاب تعینات ہوئے ہیں، تو وہیں ہنا ارشد ڈیپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ 2 SNGAD تعینات ہوئی ہیں۔ مہم آصف کو ڈیپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ SNGAD لگا دیا گیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے 5 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں، اور ان تبادلوں میں وسیم حامد کی خدمات پنجاب فوڈ اتھارٹی سے واپس، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ JC یونیورسٹی میں ریگولر وائس چانسلر کی تقرری کا معاملہ، ڈاکٹر محمد عمر چودھری کو 4 سال کے لیے وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا ہے۔ گورنر کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ ہاں جی بالکل، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو آخرکار ریگولر وائس چانسلر مل گیا ہے، اور گورنر چانسلر کی منظوری کے بعد ڈاکٹر عمر چودھری کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور یہ ڈاکٹر عمر چودھری کو 4 سال کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا وائس چانسلر تعینات کیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس تعیناتی پر اساتذہ نے بھی جو ہے وہ اظہار تشکر کیا ہے کہ خاصے عرصے سے جو وائس چانسلر کی پوسٹ تھی وہ خالی تھی، اور عارضی چارج اور اضافی چارج سے معاملات چلائے جا رہے تھے، جس سے یونیورسٹی برے طریقے سے متاثر ہو رہی تھی، اور اب یہ وائس چانسلر کی تعیناتی کر دی گئی، اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ باقی جو افسران کی پوسٹیں ہیں اس پر بھی ریگولر اور مستقل افسران کی تعیناتی کی جانی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15 اپریل بروز منگل کو ہوگا۔ اسمبلی سیکرٹری باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ مسجد جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بروز منگل 15 اپریل کو ہوگا۔
पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे शुरू किया जाएगा, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास का नोटिफिकेशन भी बाकायदा पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी कर दिया गया है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक, नात और कौमी तराने से होगा। जबकि जो इसी का मुतल्लिका नोटिफिकेशन है वो भी पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया है, जबकि पंजाब असम्बली सेक्रेटरी चौधरी आमिर हबीब की जानिब से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि बरोज मंगल 15 अप्रैल को 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ये इजलास जो है पंजाब असम्बली का वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे तलब किया गया है। जबकि अपोजिशन के दी गई दरख्वास्त की बात की जाए तो अपोजिशन ने कहा था कि लॉ और अमन अमान की सूरत हाल पर जो है वो बातचीत करनी है, जबकि जो गन्ने का रेट है उसके ऊपर भी जो है वो बहस करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया हमसा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब का कहना था सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द काम शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है, जबकि आपको बताएंगे तलबा यूनियन बहाल न होने की वजह से सियासत में लीडरशिप की कमी हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। बताइए यासीन। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से एजुकेशन से वाबस्ता सहाफ़ियों के एक वफद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है और गवर्नर कनाल मनसूबे पर मुश्तरका मफादात कौंसिल पर सबको इकट्ठा होना चाहिए, ये बिठाकर इस पर मशावरत की जानी है, जो भी फैसला होगा वो बेहतर होगा। तो ये कहना है गवर्नर पंजाब का। उन्होंने कहा कि कनाल मनसूबे पर वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सब पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन को बहाली पर यकीन रखती है और तलबा यूनियन की बहाली जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो बदमाशी का कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। और गवर्नर ने कहा कि तलबा यूनियन बहाल होने की वजह से सियासत में लीडरशिप की कमी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सिंध की आवाज़ है कि कनाल मनसूबे पर सिंध के साथ लेकर चलना होगा। तमाम पार्टियों को अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक होना होगा और यूनिवर्सिटियों में जो परास्पर मुंशियात और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी हीरो शहरोज़ काशिफ शदीद अलील लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। शहरोज़ काशिफ का कहना है कि 6 माह कबल कमर का ऑपरेशन हुआ जो बाद में ख़राब हो गया। अब दोबारा कमर की सर्जरी के लिए अस्पताल में हूँ। शहरोज़ काशिफ को कम उम्र तरीन दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियाँ सर करने का एहसास हासिल है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए इस बारे। बिल्कुल, कौमी हीरो शहरोज़ काशिफ शदीद अली लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 6 माह कबल कमर का ऑपरेशन हुआ जो बाद में ख़राब हो गया। इस हवाले से शहरोज़ काशिफ के ज़ाहिर है दोबारा कमर की सर्जरी के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। किसी हुकूमती नुमाइंदे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कमर का दूसरी बार ऑपरेशन अभी जेब से कराया जा रहा है। और इस तरह चेयरमैन यूथ प्रोग्राम नाना मसूद ने 1 साल पहले ऑपरेशन कराने का कहा, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया। और इस वक्त कौमी हीरो शहरोज़ काशिफ ने 8 से बुलंद तरीन जो चोटियाँ हैं उन सर की हैं और K2 की समेत दूसरी चोटियाँ भी सर करते हुए हादसे का शिकार हुए थे। शहरोज़ काशिफ को हादसे की वजह से टांग और कमर में शदीद इंजरी हुई। हादसे के वक्त में ख्याल आ रहा है कि अब दोबारा कभी नहीं चल सकूंगा। को पैमा ने इस हवाले से हुकूमती और स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से अदम तवज्जो का इजहार भी किया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। काकोदान के नवाज शरीफ की सरपरस्ती में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम को लाहौर की खूबसूरती तबाह करने का जिम्मेदार करार दे दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून अंदरून शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम बनाने की तजवीज़ भी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का इजलास लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए 8 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की इब्तदाई मंजूरी दी गई। भाटीता टेक्साली इमारतों की बहाली के लिए 5 अरब 39 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए का तखमीना। रंग महल चौकता सैद मिठा मंसूबे पर 1 अरब 22 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च आएंगे। शाह आलम चौकता रंग महल प्रोजेक्ट का तखमीना 1 अरब 65 करोड़ 23 लाख 12 हजार रुपए लगाया गया है। नवाज शरीफ ने तीनों प्रोजेक्ट्स पर काम फौरी शुरू करने की हिदायत की। इजलास में नीला गुंबद की असल सूरत को बहाल करने के लिए इब्तदाई PC1 मंजूर, सर्कुलर रोड बागीचियां और बदरू को बहाल करने के इब्तदाई PC1 की भी मंजूरी। नवाज शरीफ की तजावुजात मुतासरीन को कारोबार की मुतबादिल जगह और मुआवजा देने की हिदायत। सरपरस्ते आला लहर अथॉरिटी ने कहा, शहरों की कदीम हालत में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। अंदरून शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम भी बनाया जा सकता है। रूडा बहुत अच्छा काम कर रहा है। नया शहर इंटरनेशनल
मायार के मुताबिक होना चाहिए। इजलास में DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने बताया कि लाहौर में अंग्रेज दौर की 48 इमारतों पर काम जारी है। माल रोड पर सादत मिंटू, शोरिश काश्मीरी और दीगर अदबी शख्सियात की रिहाइश गाहों को तख्ती लगाकर नुमाया किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर हमजा खुर्शीद के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तुर्क खातून अव्वल की दावत पर 11 अप्रैल से तुर्किया का दौरा करेंगी। मरीम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीबात में भी शरीक होंगी और शुरका से ख़ुसूसी खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 11 अप्रैल से तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के शुरका से खुसूसी खिताब भी करेंगी। तुर्क खातून अव्वल की तरफ से वज़ीर आला मरियम नवाज के एहसास में खुसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। मुंतज़िम तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम का उन्वान मुनक़सिम दुनिया में सफारती रवाबित की बहाली होगा। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, मुमताज सिफारतकार, राय आमा के लीडर्स शरीक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज अनातोलिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ADF लीडर्स पैनल्स में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ADF टॉक्स और ADF राउंड्स का भी हिस्सा होंगी। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान का वज़ीर आला मरियम नवाज को भिजवाए गए दावतनामे में कहना है कि मुझे अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में आपकी शिरकत से बेहद खुशी होगी। उम्मीद है कि आप हमें मेज़बानी का शर्फ जरूर अता करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात हुई है। मरीम नवाज कहती हैं कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार भी अहम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात में यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, नशोनुमा के लिए इश्तराक कार को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे के साथ निभा रही है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार अहम होगा। मुलाकात में सदर SOS विलेज ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के समाजी खिदमत के विजन और बच्चों से मोहब्बत पर मबनी पॉलिसी को सराहा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साबिक CEO बानी जैंगपिंग जाओ की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। जैंगपिंग जाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंग पिंग साओ ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। मुलाकात में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल किया गया। बाइनेंस के बानी ने नवाज शरीफ के एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के विजन को खराज तहसीन पेश किया। मियां नवाज शरीफ ने कहा, मिस्टर जाओ जैसी काबिल कदर शख्सियात से मुलाकात में तरक्की और मौके की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान अख्तराही तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में तेज रफ्तार इजाफे ने आने वाले दिनों की सूरत हाल भी वाज़ेह कर दी है। लाहौर में अप्रैल के पहले अशरे के दौरान ही पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। जनूबी पंजाब के अजला में खुशहाली के असरात भी नजर आने लगे हैं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता साल माह सितंबर से दिसंबर के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर मामूल से 42% कम बारिशें रिकॉर्ड की गईं। नतीजा ये निकला कि मार्च के आगाज से भी पहले गर्मी की शिद्दत में तेज रफ्तार इजाफा देखने में आया। बाद में खुशकिस्मती से बारिशों के कुछ सिस्टम्स की आमद के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, लेकिन अब एक बार फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अगरचे इस महीने के दौरान भी बारिशों के 2 सिस्टम्स मतवक्को हैं, लेकिन उनके असरात ज्यादा देर पा नहीं होंगे। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त भी हमारे शुमाली इलाकों में दाखिल हो चुका है, लेकिन कुछ जो हम अब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इसका असर जो है क्योंकि अपर हाफ में ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो लोअर हाफ में कम है, तो इसलिए जो नीचे के जो टेम्परेचर हमारे जो सिंध और बलूचिस्तान के हैं और कुछ जो है साउथ पंजाब है, उसके अंदर वो टेम्परेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाहौर में अप्रैल के पहले अशरे के दौरान ही पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। इसके साथ साथ रवा माह के दौरान ही दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं। सूरत हाल के बायस पंजाब के जनूबी इजला रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर में खुश्क साली के असरात भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पे बड़ा चैलेंज है कि ये 6.6 मिलियन एकड़
چولستان کا جو ایریا ہے جہاں پہ تقریباً 3 لاکھ لوگ وہاں کے باسی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہاں پہ جو کیٹل ہیڈ ہے وہ تقریباً 1.6 ملین کیٹل ہیڈ ہے. اس کے لیے 10 4x4 واٹر باؤزرز آلریڈی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ریسکیو 1122 ڈپٹی کمشنر CDA ان کے تھرو اس پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہ صورتحال موسموں کے تیز رفتار تغیر و تبدل کو بھی ظاہر کرتی ہے. خوش قسمتی سے اس مہینے کے دوران بارشوں کے 1-2 سسٹمز تو متوقع ہیں، لیکن ان کے اثرات کوئی بہت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گے. مسئلے کے دیر پا حل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جنگلات میں اضافے اور پانی کو بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں کہ اس سے صورتحال کا مقابلہ کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکتی ہے. کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. سرکاری ریٹ لسٹوں پر قیمتیں مستحکم، بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کے دام آؤٹ آف کنٹرول ہیں. عام آدمی کے لیے کچن چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے. انتظامیہ کے آفیسر خاموشی سے مہنگائی کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں. رپورٹ کریں گے عبدالقادر. سرکاری ریٹ لسٹوں میں اشیاء کی قیمتیں مستحکم، بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کے دام آؤٹ آف کنٹرول. بازاروں میں پیاز 70 روپے، ٹماٹر 100 روپے، لہسن چائنا 500 روپے فی کلو، ادرک 500 روپے، سبز مرچ 160 اور لیمو چائنا 300 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے. مارکیٹ میں ٹینڈے 80 روپے، آلو کچا چھلکا 80 روپے، بینگن 80 روپے اور کھیرا 40 روپے کلو فروخت. بازاروں میں کریلے 200 روپے، کچنار 400 روپے اور گھیا کدو 80 روپے فی کلو بک رہا ہے. رمضان اور عید گزر جانے کے باوجود پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں. بازاروں میں سیب کالا کلو 450، امرود 200 روپے جبکہ گرما 200 روپے فی کلو فروخت. کیلا 300 روپے درجن، لوکاٹ 400 روپے کلو جبکہ خربوزہ 150 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے. مارکیٹ میں درجہ اسٹرابری 150 جبکہ پپیتا 400 روپے فی کلو بک رہا ہے. سبزیوں اور پھلوں کی مہنگائی سے پریشان عام آدمی کے لیے ان دنوں گھر اور کچن دونوں چلانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز. شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سرکاری پیمانہ کامیاب نہ ہو سکا. گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی فوج مہنگائی مافیا کو نکیل نہ ڈال سکی. یہ رپورٹ دیکھیے. 79 سے زائد مجسٹریٹ کی فوج ظفر موج گراں فروشوں پر بھاری نہ پڑ سکی. شہری مہنگائی اور گراں فروشی کی زد میں آ کر ہیجانی کیفیت کا شکار ہیں. 79 سے زائد مجسٹریٹ کے لیے 1,48,000 اشیاء ضروریہ کی دکانوں کی چیکنگ ناممکن ہو چکی ہے. 10,000 تندور 400 میگا سٹورز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ہے. متعدد تندوروں پر 14 روپے کی سادہ روٹی 16 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. مہنگائی میں ہوشربا اضافہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا. بیف اور مٹن سرکاری نرخ سے 2 گنا زائد پر فروخت ہو رہے ہیں. دالیں، سبزیاں، سرخ اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ نہ رک سکا. دہی اور دودھ مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. دکاندار اشیاء ضروریہ پر 5 سے 10 روپے منافع کما رہے ہیں. خلاف ورزیوں پر 8 مقدمات کا اندراج، 73 وارننگ، 6 گرفتاریاں، گراں فروشی پر 1.5 لاکھ روپے کے جرمانے، 3 دکانیں سربا مہر کی گئیں. ڈی سی لاہور سید موسی رضا کا کہنا ہے برالر گوشت کی قیمت میں کمی کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت کڑی نگرانی جاری ہے. موسم گرما میں بھی LPG کی قیمت کم نہ ہو سکی. مافیا بے لگام ہے اور سرکاری قیمت پر LPG ملنا خواب بن گیا ہے. صارفین کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں LPG غریب کی پہنچ سے باہر ہے. فہد امین کی رپورٹ دیکھیے. موسم گرما میں بھی LPG غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. LPG مافیا بے لگام، قیمت میں خود ساختہ اضافہ جاری. شہر میں اوگرا ریٹ پر LPG ملنا خواب بن گیا. متعلقہ ادارے اوگرا ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکے ہیں. اوگرا نے رواں ماہ کے لیے LPG کی فی کلو قیمت 248 روپے مقرر کی مگر شہر میں 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی میں LPG مہنگی ہوتی جا رہی ہے. غریب کے لیے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے. گرمیاں آ گئی ہیں، تقریباً 150 روپے کلو تک جانی چاہیے. یہ غریب بندہ جو ہے وہ ارینج نہیں کر سکتا. وہ اتنے جو ہے نا گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، رشکوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، پھر یہ گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ مریم نواز کو ایکشن لے اس پہ. 4 روپے 17 پیسے بجلی کا بل کم کیا ہے، وہ بھی بیلنس نہیں مل رہا. عوام کیا کرے، کہاں سے کھائے؟ یا کرایہ دے دے یا بل دے دے، تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ قیمتوں میں اضافے سے دکاندار بھی پریشان ہیں. کہتے ہیں قیمت مافیا بڑھاتا ہے مگر کارروائی چھوٹے دکانداروں کے خلاف ہوتی ہے. کیمرامین بلال کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز. پنجاب پولیس میں رشوت کے بغیر کام ناممکن. مقدمہ درج کرنے والے اور چلان کے الگ الگ ریٹ مقرر ہیں. اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے کرپشن پر سروے رپورٹ
वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस में रिश्वत के बगैर जायज़ काम भी करवाना आसान नहीं। थानों में मुकदमा दर्ज करवाने और चालान तैयार कराने के अलहदा रेट मुकर्रर। वज़ीर आला के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने सर्वे रिपोर्ट में करप्शन का भांडा फोड़ दिया। मॉनिटरिंग यूनिट ने 6136 अफराद की मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस के रवैये पर शिकायत का सर्वे करके रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को भिजवा दी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक FIR के इंदराज के बाद 2332 लोगों ने पुलिस के रवैये और कार्रवाई पर एतमाद का इजहार किया। 561 FIRs पर गलत नंबर दर्ज, जबकि 313 मुकदमात में मुद्दई दस्तयाब नहीं था। 729 केसेस अभी तक मुख्तलिफ थानों में ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। सर्वे रिपोर्ट में थाना बागवानपुरा, सब्ज़दार, गार्डन टाउन के बाद ऑफिसर और अहलकार के अदम ताउन की शिकायत, पुलिस एहलकारों की अवाम के साथ बदतमीजी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, रिश्वत सतानी की भी रिपोर्ट्स। कुछ केसेस में एहलकारों पर माली फायदे के लिए तहकीकात में हेरा फेरी करने का इल्ज़ाम। मुतअद्दिद केसेस में पुलिस ऑफिसर बरवक्त शिकायत का जवाब देने में नाकाम रहे। मुतअद्दिद ऑफिसर्स ने तफ्तीश में गैर जानबदारी की बजाय बाअसर अफराद का साथ दिया। मुतअद्दिद मामलात में पुलिस ऑफिसर्स ने लोगों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय तनाज़ियात के हल के लिए दबाव डाला, जिसकी वजह से मुतासिरा अफराद में मजीद अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई। निजी एयरलाइंस की परवाज से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिर से करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। कस्टम्स हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। शारजा से लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाली निजी एयरलाइंस की प्रवास के मुसाफिर मुमताज मुजफ्फर के सामान से 95 मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स पकड़े गए। बरामद किए गए फोन्स की मालियत आलमी मंडी में करोड़ों रुपए बताई जाती है। कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम में डेप्यूटी कलेक्टर अहमद जहीर, सुपरिटेंडेंट इरफान लकारी, इंस्पेक्टर अक्सर खालिद, इंस्पेक्टर फहीम और कांस्टेबल फाइका यूनस शामिल है। कस्टम्स हुकाम ने मोबाइल फोन्स के स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए तमाम फोन्स कब्जे में लेकर मुसाफिर मुमताज मुजफ्फर को हवालात में बंद कर दिया, जिसके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्स की बंदिश का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दूसरी जानिब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक्स यूजर हुकूमती अरकान के लिस्ट देने से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि इस केस में PTA की रिपोर्ट पहले ही जमा हो चुकी है। अदालत ने इस्तेमाल करने वाले हुकूमती अरकान की लिस्ट तलब की थी। हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसी कोई लिस्ट मुहैया करें। एडवोकेट अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक्स की बंदिश पर PTA और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं। वफाकी हुकूमत का एक्स की बंदिश के मामले पर कोई तहरीरी जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अदालत में 1 पेज का तस्वुर नहीं हुआ करता। आप और अदालत भी 1 पेज पर नहीं। अटॉर्नी जनरल तैयारी के साथ पेश हों, तमाम लीगल चीजों पर रोशनी डालें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट पर अमल दरामद के लिए केस की समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कुर्तुलैन अफसल एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट पर अमल दरामद के लिए केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहान अली शाह और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा समेत अदालती मुआवन बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने बताया कि पुलिस तफ्तीश गलत भी हुई हो तो मौसिस जज दुरुस्त करने का हुक्म दे सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहान अली शाह ने बताया कि टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत ऐसे शहरी जिन पर पुलिस की ज़ेरे हिरासत तशद्दुद या वो जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाएं, ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार FIA के पास है। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। बैरिस्टर हैदर रसूल ने अपने दलाइल अदालत में जमा करवाए, जिसके बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कुर्तुलैन अफसल एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए कार्रवाई 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फिल वक्त इतना ही।